Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome back to the physics class. Today we are starting our unit number 2, measurements. Okay, first let's understand what is meant by the word measurement. The number to show the amount of anything. किसी भी चीज़ की हम कितनी क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम जो है वो प्रेजेंट करते हैं with the help of numbers. So that particular number is known as measurement of that thing. Just like volume of a liquid. How much liquid I am consuming, it is measured as its volume. Similarly, the weight of a person or any object and length of rod, temperature of room, area of box. So these all are what? Measurements of these particular quantities. So these are the daily life scenarios in which measurement is applicable, right? Okay, now the next important terminology related to measurement is least count. The minimum point of measurement of any measuring instrument. देखिए लीस्ट काउंट का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है वो मिनिमम अमाउंट में कितनी क्वांटिटी को मेजर कर सकती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है. जैसे लैब्स में हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिजिक्स लैब में, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर. स्क्रू गेज जो है वो रेडियस को मेजर करने के लिए यूज होता है. तो उसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है कि वो कितना मेजर कर सकता है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. इससे लेस वो मेजर नहीं कर सकता. इसी तरह से वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका जो लीस्ट मेजरिंग पॉइंट है वो क्या है 0.1 सेंटीमीटर. मतलब वो इससे लेस मेजर नहीं कर सकता. सो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी डिवाइस. क्लियर? व्हाट इज मीन बाय यूनिट? नॉर्मली हम यूनिट्स को डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ यूज कर रहे होते हैं, बट व्हाट इज यूनिट इटसेल्फ? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी इन अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड. कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है उनको हम किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज द यूनिट. लेट्स कंसीडर द प्रीवियस एग्जांपल्स. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन मिलीलीटर्स. वेट ऑफ अ पर्सन in kgs. Length of a rod measured in meter. Temperature of a room is measured in degree Celsius. Area of a box is measured in the meter cube. So these all are basically the units of these particular quantities. Now we have the two basic types of quantities which are fundamental quantities and derived quantities. Students, fundamental quantities are those which are defined directly. मतलब जो किसी और क्वांटिटीज से कंबाइन होके नहीं क्रिएट हुई, वो डायरेक्टली एग्जिस्ट करती हैं, उनको डायरेक्टली डिफाइन किया गया है. सच क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल. ओके, हियर इज द टेबल. जस्ट लाइक वी हैव टाइम. सो टाइम इज इनिशियली डिफाइंड, राइट? सो इट्स unit is simply the second. Its unit is not derived with the multiple units. So it is the fundamental quantity. Similarly, we have length, mass, amount of substance, temperature, current, intensity. These all are the fundamental quantities. And the units which are obtained from fundamental quantities are known as fundamental units. Easy? This is your question number 1, in which we have 4 different definitions. The 2 are here and 2 are on the next page. The next concept is derived quantities. Derived quantities are those which are comprising of the fundamental ones. जो कि fundamental quantities से combine होके create हुई हैं उनको हम derived quantity कहते हैं. Suppose that there is a velocity. Velocity is basically the distance with the particular time. एक particular time में जितना distance cover हुआ है उसको हम velocity कहते हैं. तो ये बेसिकली मीटर पर सेकंड बन रहा है यूनिट इसका. अब ये देखें यहाँ पे 2 इंडिविजुअल यूनिट्स को कंबाइन करके एक नया यूनिट क्रिएट हुआ है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी. सिमिलरली वी हैव एक्सेलरेशन, राइट? इट कंटेन्स द यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So it is also the combination of the fundamental ones. Similarly, we have force, momentum, energy, power, area, volume. These all are the derived quantities. Clear? Now we have system of units. Set of fundamental and derived unit is called system of units. It means that how we state our different systems
The first one is MKS system, in which the standard units are used meter, kilogram and second. Meter is for length, kilogram is for mass and second is for time. Second one is CGS system, where C stands for centimeter. Here the standard unit of length is centimeter and standard unit of mass is gram and standard unit of time is second. So that's why it is known as CGS system, the short form of this. Third one is British engineering system, which is also known as FPS system, in which the length is measured in the foot and the mass is measured in pounds and time is measured in seconds. So it is known as FPS and also known as British engineering. The last one is System International Unit. It comprised basically on MKS system but also include these all fundamental quantities. ठीक है, ये सिर्फ टाइम, लेंथ और मास पे बेस नहीं करता, ये रिमेनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज पे भी बेस होता है. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का, एंड दिस लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड. क्लियर? देयर इज द स्मॉल डिफरेंस इन MKS एंड सिस्टम इंटरनेशनल. MKS में सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज पे फोकस होता है, ठीक है, जबकि सिस्टम इंटरनेशनल में तमाम फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसिडर करते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिफाइन 1 kilogram. Actually, there is the International Center in Paris which analyze measurements. This is known as International Bureau of Weights and Measures. They took one cylinder made of platinum iridium and put it in certain pressure and temperature for some time. Then observe the weight and define that weight as 1 kilogram, the standard. The reason why they took platinum iridium, because this combination of elements don't show change of behavior with the change of surrounding. देखें, ये कॉम्बिनेशन जो प्लैटिनम इरिडियम बार का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज किया, उसको यूज करने की वजह ये थी कि इन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ उन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता, वो अपना चेंज ऑफ बिहेवियर को शो नहीं करते. तो जब भी हम किसी स्टैंडर्ड चीज को हमें डिफाइन करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी ऐसे एलिमेंट्स को यूज करें जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक कांस्टेंट बिहेवियर को शो करें, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए. तो इसलिए जब इन्होंने किलोग्राम को डिफाइन किया, सो दे यूज प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, यानी कि उसका मिक्सचर इन्होंने यूज किया. और उस पर्टिकुलर मिक्सचर को जब इन्होंने एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मास को इन्होंने डिफाइन किया कि नाउ इट इज कंसीडर्ड एज 1 kilogram. Similarly, in case of length, they took platinum iridium bar and applied certain temperature on it and observed the size of bar and defined it as 1 meter. जब लेंथ को डिफाइन करना था तो उन्होंने प्लैटिनम और इरिडियम की एक रॉड को कंसिडर किया, ठीक है, और उसको भी सर्टेन टेम्परेचर में पुट किया. और आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसके साइज में कोई चेंज नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर साइज को, उस पर्टिकुलर लेंथ को इन्होंने फिर डिफाइन कर दिया कि ये 1 मीटर कहलाएगी. तो इस तरह से स्टैंडर्ड्स डिफाइन हुए थे. The next one is how to define the second. Second is the standard unit of time. Okay, in seconds they use cesium element. Cesium is the radioactive element that emit radiation. Its valence electron has the nature of performing the vibration. ये देखिए, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, मतलब ये अपनी पोजीशन पे आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, फिर यहाँ से मूव कर रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर अपनी पॉइंट पे वापस आ रहा है. अच्छा, ये जो इनमें ये जो वाइब्रेशंस ऑब्टेन हुई हैं, इन वाइब्रेशन को जो एक जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये देखिएगा इस तरह से इन्होंने इस साइकिल को यहाँ पे आप इस तरह से जब ब्रॉड करके दिखाया, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज 1 पीरियड. तो अब देखिए, इस वाइब्रेशन में डिफरेंट पीरियड्स हमारे पास बनते चले जा रहे हैं. तो जब इतने बिलियंस ऑफ पीरियड्स मेरे पास कंप्लीट होते हैं, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा 1 सेकेंड कंप्लीट कर रहा है. मतलब जितने टाइम में
इतने पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन सीजियम एटम परफॉर्म करता है, उसको एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया था फॉर 1 सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको यूनिट्स भी मेंशन किए हैं, जस्ट लाइक 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। नॉर्मली डेफिनेशन के साथ अगर हम उसका कोई भी रेलेवेंट पॉइंट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं या प्रेजेंट करते हैं, सो इट इज गुड फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चाहिए कि हम हर डेफिनेशन के साथ उसकी कोई ना कोई रेलेवेंस को शो करें, तो इसलिए किलोग्राम के साथ आई यूज 1 kg एज 1000 grams एंड फॉर सेकेंड आई यूज 60 seconds इज इक्वल्स टू 1 minute। Okay, now we have to understand how to convert the units। अच्छा, यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो आपकी बुक में यूनिट्स कन्वर्जन जो है वो उनके डायरेक्ट स्टेप्स हैं, पर उस केस में आपको एक एक यूनिट की वैल्यू को मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। बट इससे बेटर वे ये है कि अगर आप इस पैटर्न को सिर्फ अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट कन्वर्जन जो है वो आपके हर चैप्टर में यूज होगा, क्योंकि हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में आपको कन्वर्जन्स की नीड होती है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अगर इस पैटर्न को मेमोराइज कर लोगे तो आपको इंडिविजुअली हर यूनिट की वैल्यू को याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, आई एम प्रोनाउंसिंग इट इज K blank D C M mu N। I'm repeating, K blank D C M mu N। This is micro, this is nano, this is for milli, this is centi, this is deci। It is the blank space, I'll tell you what will be in the blank, and this is for kilos। देखिए ये जो यूनिट का अमाउंट होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। अब जो भी आगे हम यूनिट्स यूज करेंगे वो उसके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते चले जाएंगे। तो जो पैटर्न आपने मेमोराइज करना है विच इज इन द साउंड लाइक K blank D C M mu N, राइट। अच्छा, अब ये जो ब्लैंक्स, ये जो हमने इस तरह से यहाँ पे ब्लैंक पुट किए हैं, जो डैशेज हैं, ठीक है, इनके नीचे जो सर्टेन वैल्यूज मैंने आपको दी हैं, ये वैल्यूज इसी तरह से आपने मेमोराइज करनी होंगी। जैसे जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके नीचे एक्सपोनेंट 3 है, सेकंड ब्लैंक ओनली 10, थर्ड ब्लैंक ओनली 10, फोर्थ ब्लैंक ओनली 10, फिफ्थ ब्लैंक एक्सपोनेंट 3 एंड सिक्स्थ ब्लैंक इज ऑल्सो एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को एज इट इज आपने मेमोराइज करना है। नाउ हाउ दिस कन्वेंशन इज अप्लाइड फॉर द कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कन्वर्ट द मास, ठीक है। अब मास है तो डेफिनेटली उसमें जो है वो किलोग्राम होगा, ग्राम होगा। तो देखिएगा ये जो आपका K blank D C M mu N का पैटर्न था वो सेम रहा, पर आगे जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो मैंने यहाँ पे ग्राम्स को पुट कर दिया। ग्राम पुट करने का रीजन क्या था? बिकॉज वी आर डूइंग द कन्वर्जेंस फॉर मास, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे जब ये यूनिट्स मेरे पास कंप्लीट हो गए तो अब देखें मैं इसको क्लियरली रीड कर सकती हूँ कि किलोग्राम से ग्राम्स में जाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 3 मीन्स 1000, एक्सपोनेंट 3 मीन्स 1000, ठीक है। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द 1000। सिमिलरली ग्राम्स से डेसीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई विद द 10 एंड फ्रॉम ग्राम टू मिलीग्राम, ग्राम से मिलीग्राम के बीच में आप देखिए कितने नंबर ऑफ टेंस हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टेंस होंगे उतने ही टाइम्स हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ग्राम से मिलीग्राम के लिए वी हैव 3 टाइम्स ऑफ 10, सो इट मीन्स 1000, राइट। सिमिलरली किलोग्राम टू मिलीग्राम, किलोग्राम से मिलीग्राम के दरमियान में 3 टेंस ये हैं और एक्सपोनेंट 3 भी है। तो एक्सपोनेंट 3 और ये 3 टेंस भी एक्सपोनेंट 3 क्रिएट कर रहे हैं, तो 3 + 3 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। तो किलोग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए एक्सपोनेंट 6 करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कन्वेंशन स्टार्ट हुई है दिस इज फ्रॉम द लार्ज यूनिट टुवर्ड्स द स्मॉल यूनिट्स। मतलब अगर मैं इस कन्वेंशन को देखूं
So here kilogram is the largest, then gram is smaller than kilogram, then decigram is smaller than gram. तो जिस तरह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं यूनिट्स हमारे पास स्मॉलेस्ट होते चले जा रहे हैं. जब हमें लार्ज से स्मॉल यूनिट्स में स्विच करना है, जैसे अगर मैं अपना सिंपल लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हूँ तो मुझे इन 10 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है. जस्ट लाइक 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम्स. ये देखिएगा, ग्राम से सेंटीग्राम्स में स्विच करना है तो ग्राम से सेंटीग्राम के दरमियान में कितने नंबर ऑफ टेंस है? 2 टेंस है. तो 10 टेंस आर 100. सो हियर 100 सेंटीग्राम. सिमिलरली 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए देखें कितना नंबर ऑफ टेंस है? 3 टेंस है. सो इट इज 1000 मिलीग्राम एंड सो ऑन. इस तरह से हम अपनी इस पूरे कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. पर अगर मुझे स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे ये बात पता है कि मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज किलोग्राम, और लेट सपोज मेरे पास कोई न्यूमेरिकल आया और उसमें जो मेरे पास मास की वैल्यू है दैट इज मिलीग्राम. तो अब मुझे मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब मैं स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जब मूव करूंगी तो मैं देखूंगी कि कितने नंबर ऑफ टेंस प्रेजेंट है. पर ऐसे केस में मुझे डिवाइड परफॉर्म करना है. ठीक है, तो बस जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि जब हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट्स में मूव करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होता है विद दीज नंबर ऑफ टेंस, और जब हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट्स में मूव करते हैं सो वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर ऑफ टेंस. लाइक 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 1/100 ग्राम. ये देखिए, आई हैव टू मूव फ्रॉम सेंटीग्राम टू ग्राम and here the number of tens present are 2. So 10 into 10, 100. So it becomes 1/100. Divide में जाएगी value. Clear? Okay, same in the case of length convergence. Here we have length, so we have to use meters everywhere. With K, so it becomes kilometer, it becomes simply meter, it is decimeter, centimeter, millimeter, micrometer and nanometer. Right? It is pronounced as micrometer and symbol is called as nu. Okay, the convention is same for large to small units. We have to multiply the number of 10 and from small to large units we have to divide. ठीक है, वही वाला केस है बिल्कुल जैसे हमने अभी मैथ्स के लिए किया है. बस यहाँ पे चेंज क्या आ गया कि क्योंकि ये लेंथ कन्वर्जन है तो हमें ग्राम्स की जगह पे मीटर्स यूज करना है. क्लियर? बाकी नंबर ऑफ टेंस और उनकी पावर्स बिल्कुल सेम रहेंगी. क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, टाइम कन्वर्जन में थोड़ा सा हमारे पास चेंज आता है. डेफिनेटली टाइम जो है वो किलोज में तो नहीं होता ना, टाइम हमारे पास सेकंड्स में होता है, मिनट्स, आवर्स. अच्छा, और जो सेकंड से स्मॉल यूनिट्स हैं वो तो सेम ही होते हैं. डेसी होता है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो. ठीक है, पर सेकंड से जो बड़े यूनिट्स हैं दैट इज मिनट्स, दैट इज आवर. ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली उनकी वैल्यूज भी चेंज होती हैं. अब यहाँ पे अगर किलो होता तो वो हम लिखते एक्सपोनेंट 3, बट यहाँ पे तो टाइम करना है. ठीक है, जो वी हैव यूज्ड मिनट्स एंड आवर्स एंड वी नो दैट 1 minute contains 60 seconds and 1 hour contains 60 minutes. So we have to write 60 on the first blank and 60 on the second blank and then 3 times, and in the end we have to write exponent 3 and exponent 3. यहाँ पे थोड़ी सी कन्वेंशन चेंज है टाइम के लिए. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे मूव करना है 1 आवर में कितने मिनट्स हैं तो देखिएगा आवर से मिनट्स में 60 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 मिनट्स. 1 आवर में कितने सेकंड्स हैं? आवर से सेकंड्स के दरमियान में 2 60s हैं, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज 3600. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3600 होगा. 1 सेकंड में कितने डेसी सेकंड्स हैं? 1 सेकंड और डेसी सेकंड्स के दरमियान देखें सिर्फ 10 का गैप है, सो इट बिकम्स 10 डेसी सेकंड. अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, मैं चाह रही हूँ कि मिनट्स में, मतलब मिनट्स को आवर्स की फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना है सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा क्योंकि हम स्मॉल से लार्जेस्ट में जा रहे हैं. क्लियर? Okay, now we have numericals which are present on page number 31 of your book. I am solving 2.2 and 2.3 and 2.4 are your homework. Okay, the mass of an electron is 9.11 exponent minus 31 kg converted in gram, milligram and microgram. अच्छा, ग्राम को अगर हम gm लिखें सही है, या अगर हम खाली ग्राम लिखें तब भी वो सही है. ठीक है, ओके, डाटा हमने क्रिएट किया. सोल्यूशन पर हम स्विच कर रहे हैं. जो फर्स्ट कन्वर्जन है दैट इज फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम.
मतलब इन तमाम यूनिट्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो जो स्टैंडर्ड है अभी हमें गिवन है वो किलोग्राम है, तो किलोग्राम से हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 3। तो ये देखिए इस क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 3 कर दिया, और अब क्योंकि एक्सपोनेंट 3 कर दिया है तो आगे मैं यूनिट भी चेंज कर दूंगी ग्राम। ओके, नाउ आई हैव परफॉर्म सम exponent law. Here we have bases same, so we have to perform addition of the powers. So minus 31 plus 3 becomes minus 28 gram. सही है, तो ये वैल्यू आपकी सेम रही, एक्सपोनेंट्स में चेंज आ गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू मिलीग्राम। एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया, सेकेंड पार्ट पे स्विच कर रहे हैं, मिलीग्राम फाइंड करना है। तो 1 kg से मिलीग्राम में जाने के लिए देखते हैं कितने हमें टेंस की ज़रूरत है। kg से मिलीग्राम में जा रही हूँ तो एक्सपोनेंट 3 आया सेंटर में, 10 अगेन 10 एंड अगेन 10। सो वी हैव बेसिकली एक्सपोनेंट 6, 3 टाइम्स ये हो गए और 3 टाइम्स ये हो गए, सो एक्सपोनेंट 6 हो गया। ठीक, तो एक्सपोनेंट 6 को अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी और उसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली किलोग्राम टू माइक्रोग्राम, अब देखते हैं किलोग्राम से माइक्रोग्राम के दरमियान कितने नंबर ऑफ टन्स हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, किलोग्राम से माइक्रोग्राम में 9 टन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सो आई हैव रिटन एज 10 एक्सपोनेंट 9 माइक्रोग्राम। 10 एक्सपोनेंट 9 को इसके साथ सॉल्व किया तो माइनस 22 आपका आंसर आ गया। 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 22 माइक्रोग्राम। Clear? Easy a conversion. Now 2.3 and 2.4 are your homework, and these are the objectives, and note down these objectives in your book. Okay students, this is for the today's lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.